Very good morning, ma'am. Good morning. Vishnu, good morning. Morning. Good morning. चलिए, सबके पास exchange list है? Yes, ma'am. Everybody is having exchange list? Okay. So we will start with protein rich recipes first. Okay. Till now, like when we say a protein rich recipe, हम लोग randomly कुछ recipes के नाम लेते हैं, but we are not sure of how many proteins we are going to get from that particular recipe. Okay. So आज है ना हम लोग वो रेसिपी सुनने के बाद में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एटलीस्ट उसमें प्रोटीन्स कितने हैं. फाइबर्स ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट, लेकिन फिलहाल वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. पहले हम लोग प्रोटीन्स की बात करते हैं. एंड इन ऑर्डर टू मेक दैट रेसिपी वेरी वेरी इफेक्टिव, व्हाट अदर थिंग्स वी शुड बी एडिंग टू दैट रेसिपी. तो रेसिपी प्लानिंग का जो पार्ट है ना, वो आपका आपको मतलब वो डायरेक्शन मिल जाएगी. ठीक है, कि कैसे हम लोगों को प्लान करना है चीजें. एंड दिस इज अंडर ऑल फिजियोलॉजिकल. तो आप ये समझ लो कि मतलब ये हम लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड क्लाइंट के लिए नहीं कर रहे हैं. कॉम्प्लिकेटेड एज इन कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशंस है क्लाइंट को, लाइक ये क्या किडनी डिसीज है, लीवर का कोई एलिमेंट है, या फिर प्रोटीन माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन्स में से, वैसे वाले केसेस नहीं. दिस इज जस्ट वी आर जनरली डिस्कसिंग द हेल्दी रेसिपीज. ओके. Then later on, as we are learning the clinical conditions, at that time we can relate that clinical condition and the recipes that we have planned. Again, the same thing you have to do when you will plan different recipes. Like 5 recipes we will be discussing in class, but your homework will be to plan 5 different other recipes which are rich in proteins. So maybe proteins will do today and fibers will do in the next class. Okay. So that you will get like lot of variety of those recipes with you. Okay, so everyone ready for this? Yes. Yes, ma'am. Okay, so we will start with first. Now see, protein rich recipe. So you start planning non-vegetarian foods. Okay. So natural form of any kind of muscle will already have lot of proteins into it, right? So वो तो एक चीज है. लेकिन apart from that, that will be one recipe. Like out of 5, that will be one recipe we will discuss today. And आप भी जब non-vegetarian कोई recipe बनाओगे, so 1 or 2 you can plan. But the rest of the 3 recipes, they should be vegetarian source, because there are many people who are vegetarians, who are vegans also, and they want to lose weight and they have very limited options. So in order to have more options for those clients, we will be discussing this. And also there are clients like who do eat non-vegetarian foods, but daily they don't like to have it, right? So we need to have different options for them. Okay. Yes. So just have a look, like in 2 minutes, just have a look through your exchange list, everyone. So first is cereals group. Look at the amount of carbohydrate, proteins and fats. Then is pulses group. उसका भी carbohydrate, proteins and fats देखो. And what you have to remember when you are glancing through it is you just have to see that this particular group is rich in carbohydrates, proteins or fats. अभी के लिए आप इतना ही याद रखो. When we will make calculations, no, then that will become more easier for you, and selection of foods वो आपका अच्छा हो जाएगा. Okay, got it? Yes. So everyone just look at the exchange list properly. Energy density of foods also we have learnt in class, right? So energy density कौन से group में ज़्यादा है, कौन से group में कम है? Where is that energy density coming from? Which source? Whether it is carbohydrate, proteins or fats? Just see through it. See the amounts. Compare the amount with the amount of calories you are getting. Okay. Done, everyone? Yes? Yes, ma'am. Okay. So now tell me, you can look through the exchange list. Okay, this is a practical training to you can say. Now tell me which is the most energy dense group, जिसकी energy density बहुत ज़्यादा है.
एनर्जी डेंसिटी मतलब समझ रहे हो ना? व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? सम वन ऑफ यू टेल मी. यस, एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है? मतलब कम क्वांटिटी में मैम वो ज्यादा एनर्जी दे रहा कैलोरीज, ज्यादा कैलोरीज मिल रही है. हाँ. फूड सब्सटेंस कम है लेकिन उससे ज्यादा हमें कैलोरीज मिल रही है. दैट इज एन एनर्जी डेंस फूड. ओके, एंड लो एनर्जी डेंसिटी इज वाइस वर्सा. ज्यादा क्वांटिटी में कम कैलोरीज मिल रही है. सो विच इज द मोस्ट एनर्जी डेंस ग्रुप? है. Nuts and oilseeds. Nuts and oilseeds. Everyone agrees to this? Yes, ma'am. Look through the exchange list. See, nuts and oil seeds में कम quantity में you are getting more calories, right? Now even dry fruits they will have they are also high energy dense foods. Okay, now लेकिन उससे nuts and oil seeds ज्यादा है because nuts and oil seeds are कहाँ से calories आ रही है? Nuts and oil seeds Fats. के group में we are getting calories from fats, right? Yes, ma'am. Okay. Now, which is lowest energy dense group? Lowest energy dense group. Vegetables. And vegetables. Which group of vegetables? वैसे तो Um, सारे vegetables group A. आएंगे. हाँ. Group A. Group A. Group A, yes. Group A vegetables are energy. I mean low energy density, right? अभी vegetables group में which is high energy dense group? Vegetables group में I am talking about only vegetables group. Group B. Which group? D. Potato. B. Potato one, which is giving you more Yes, ma'am. calories, right? अभी Yes, ma'am. बाकी सब लोगों को भी बताना है, right? Okay. Now, again, if you want to plan yeah, one more question. Which is a group which will have good amount of carbohydrates, proteins as well as fats? Carbohydrates also, proteins also, and fats also. Medium group. Milk. जो Ma'am, milk and products. Milk and milk products, very nice. Milk and milk products. So if you see, if you go through all the groups, you will see that there will be specificity. Case food group में you are getting more of proteins. So and so group you are getting more of carbohydrates. So milk and milk products is a group which is in which you are getting good amount of all the nutrients, that is carbohydrates, proteins, and fats. Okay. Now tell me which is a group which will give you good amount of carbohydrates. Cereals. Cereals. Cereals, only cereals. ये सब लोग देखो अपने sugar वाला भी seeing या फिर keep your videos on so that I can see that you are here with me. Sugar fat. वो oil वाला होगा मैम. Oil. Sugar. What was the question? मैंने क्या पूछा था आपको? Carbohydrates. Carbohydrates. Carbohydrate content ज़्यादा कुछ. Cereals बोल दिया. That is one thing. Then what is Sugar. carbohydrates? Sugars. Sugars. Pulses में भी है. Pulses में भी है. Okay. What else? Very important group you are missing on. Fruits. Fruits. Okay, fruits. So if your diet plan, आपकी let's say कि I have asked you to prepare a diet plan and आपके क्या सब सारी चीजें ठीक आ रही है, मतलब properly it's like proteins, fats आपके अच्छे आ रहे हैं, carbohydrates are less in your plan. Okay, so which is the healthiest option amongst these will be fruits, because fruits आप कहीं पे भी incorporate कर सकते हो, right? Small amount giving you good amount of carbohydrates. You can also add cereals if you are wanting complex carbohydrates. Like for example, diabetic patient hai, you have already planned one fruit throughout the day. Okay, and still carbohydrates आपके कम आ रहे हैं. So what you will do, you will either add this cereals group or pulses group. Why? Because that is a complex carbohydrate. You don't want this sugar to get rise. So इसीलिए क्योंकि इसमें glycemic index maximum fruits का idea it will be high or it will be moderate. Low glycemic index जो है वो सिर्फ watermelon में रहेगा, which is a very low glycemic index fruit.
बाकी इवन ग्रुप ई अगर देखोगे तो उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इट विल बी मॉडरेट, हाई नहीं है लेकिन मॉडरेट रहेगा. गॉट इट एवरीवन? सो चॉइस ऑफ फूड समझ रहे हो कैसे करना है आपको? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now tell me, if a patient of arthritis comes to you, okay, arthritis का patient हमारे पास में है ट्रीटमेंट के लिए, सो उस पेशेंट के लिए जो मेन्यू प्लान आपने बनाया है उसमें फैट्स कम है. ओके, सो व्हाट यू विल डू? फैट्स के सोर्सेस क्या है? फर्स्ट सी द सोर्सेस ऑफ फैट्स. Nuts and oil Nuts seeds. and oils. Nuts and oil seeds and Milk, Milk and milk products. milk and milk products, very good. And fish, वो non-veg होगा मैम. Meat, eaten. नॉनवेज रहने दो, बट फैट्स लाइक ज्यादा फैट्स नहीं है ना उसमें. अच्छा. व्हाट इज द थर्ड थिंग? Sugar and fats. हाँ, वो फैट्स जो ऑयल्स जो रहेंगे दैट इज आल्सो Yes, ma'am. कंटेनिंग फैट्स. सो यू हैव 3 ऑप्शंस. ठीक है, इन ग्रुप में आपके पास 3 ऑप्शंस है. वन इज nuts and oil seeds, other is milk and milk products, and third is your oils like visible oils. Okay, so what will you add to their diet plan अगर फैट्स कम है तो? among these Milk 3 and milk products. है, ये है and ये है. Okay? Milk Yes, products you can add add करेंगे. milk and milk products because milk contains good amount of calcium. Yes. Okay, and which milk preferably you will add is the cow's milk for an adult person. Okay, now if a patient of let's say a pregnant woman, उसके लिए डाइट प्लान बना रहे हो आप. ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डाइट प्लान बना रहे हो, उसके डाइट में यू हैव प्लान द लाइक प्रॉपर मेन्यू प्लान किया है, डेज मेन्यू प्लान, एंड स्टिल यू आर डेफिशिएंट ऑफ फ्यू कैलोरीज कमिंग फ्रॉम फैट्स, मतलब फैट्स कम है उसके डाइट में, तो कौन सा ग्रुप ऐड करोगे? Nuts add करेंगे. Nuts and oil seeds. Yes, ma'am. Nuts. Nuts and oil seeds, and also eggs, right? Because eggs will give you proteins. Boiled egg is also going to give you like other fat soluble vitamins. Okay, and it is a good source of fats as well as proteins. So in pregnancy and lactation you can give nuts and oil seeds and that group in more amounts. Like milk also you can add, no doubt, but you have to see again the other parameters also for adding milk. Okay, now why nuts and oil seeds is helpful for a pregnant female? Because जो इन्फ्लेमेशन चल रहा है, जो वेयर एंड टेयर ऑफ टिश्यूज हो गया है, so in order to heal it also needs good amount of antioxidants which are not present into milk. Okay, which will not be present into to that extent into eggs also, and obviously oils and इसमें तो नहीं ही रहेंगे antioxidants. So nuts and oil seeds वाला group it will help that lady more as compared to the other groups. समझ में आ गया आपको कैसे चीजें कंसीडर करनी है जब आप डाइट प्लान्स बनाओगे? चॉइस ऑफ फूड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. चॉइस. ओके, सेकंड थिंग इज एग्स एंड नट्स एंड ऑयल सीड्स में यू आर गोइंग टू गेट कैल्शियम एज वेल एज आयरन. कि जो आपको सिर्फ कैल्शियम मिलेगा मिल्क में, ऑयल्स में तो आपको एनीवेज कुछ मिलने वाला है नहीं है. ओके, एंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड देन सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम यू विल गेट इन एग्स. इसमें लाइक नट्स एंड ऑयल सीड्स में यू विल गेट मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन एज कंपेयर्ड टू द अदर फूड्स. गॉट इट एवरीवन? बट दो कैल्शियम इज प्लान्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी also and during lactation also. So both the groups you can consider. ठीक है? Now starting to plan with the protein rich recipes. Okay, so one by one you are going to tell me what protein recipe you can plan. Okay, irrespective of I'm not giving you any kind of client या ऐसा कुछ, you just have to tell me the protein rich recipe and how it will be. You can फिर उसके बाद में मैं आपको वो रेसिपी मॉडिफाई करते समय डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस आप उस रेसिपी को कैसे मॉडिफाई करोगे. ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल अभी एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ. यू आर मेकिंग स्प्राउट्स भेल. ओके, स्प्राउट्स यू आर प्लानिंग फॉर द पेशेंट. Now sprouts contain good amount of protein. Okay,
So if the patient is deficient in iron, okay, or if the patient is deficient in vitamin D, or if the patient is deficient in calcium, तो इन तीनों के स्प्राउट्स वाली भेल वो कैसे चेंज होगी, वो कैसे डिफर होगी, दैट वी विल टॉक ऑन. ओके, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. अभी हम लोग जो है ये भी एग्जांपल्स आगे भी देखेंगे. तो लाइक वो लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो आपकी प्रैक्टिकली बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रेसिपी. यस, हु विल टेल मी? यू कैन जस्ट टेल द रेसिपीज. हम लोग उसकी क्वांटिटी एंड ऑल वी विल डिस्कस. ठीक है, चलो. Who will tell first recipe? मैम हम स्मूदी भी तो ऐड कर सकते हैं. हाँ, smoothie also you can add. It should be rich in proteins. यस मैम. Yes, बताइए. तो मैम हम ओट्स स्मूदी कर सकते हैं उसमें मिल्क डाल के. हाँ, मैंने सुना नहीं, सॉरी. ओट स्मूदी. मैम ओट्स स्मूदी इसमें मिल्क वगैरह डाल के, नट्स वगैरह डाल के. ओट स्मूदी में नट्स डाल के. अभी विष्णु आपको क्या करना है? ओट स्मूदी में आप कितना ओट्स डालोगे उसमें कितना नट्स मिलेगा डालोगे, और उसमें प्रोटीन्स आपको कितनी मिलेंगे ना, वो आपको 5 मिनट्स में कैलकुलेट करना है. ठीक है. रेफर टू योर एक्सचेंज लिस्ट. ओके. नेक्स्ट रेसिपी लिखे रखो सब लोग. ओट स्मूदी चाट भी बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? मतलब उसकी एक चाट की तरह बना सकते हैं. उसके अंदर पनीर ऐड कर सकते हैं प्रोटीन के लिए. किसके अंदर? मतलब स्प्राउट के अंदर. स्प्राउट्स के अंदर. ओके. सो स्प्राउट्स भेल जैसे बोल रहे हो आप, है ना? ओके. तो उसमें क्या क्या ऐड करना है? मैम उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे स्प्राउट्स के अंदर नट्स हो गए, उसके अंदर प्रोटीन के लिए हम पनीर ऐड कर सकते हैं. हम उसके अंदर ये कुकुम्बर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं. ओके. पनीर, कुकुम्बर, और क्या बोला आपने? नट्स भी डाल सकते हैं. ओके, फॉर टेस्ट. ओके. ओके, नेक्स्ट. आपको भी वही करना है. एक ही मिनट है पूजा. मनदीप जी, आपको भी वही करना है. स्प्राउट्स आप कितने क्वांटिटी में लोगे? ओके, कितने क्वांटिटी में लोगे, उसमें आपने क्या क्या चीजें ऐड की है, और उससे आपको उस अमाउंट से आपको प्रोटीन्स कितने मिलेंगे. यू हैव टू टेल दैट. ओके. यस यस पूजा. मैम सोया चंक्स का सब्जी प्लान कर सकते हैं ना? सोया चंक सब्जी, लिटिल बिट रेसिपी ऑफ इट. मैम ग्रेवी वाला सब्जी हो सकता है, और जो रोटी लेंगे उसमें भी हम थोड़ा सोया फ्लोर मिलवा सकते हैं प्लेन आटे के साथ. रोटी में सोया फ्लावर एंड ग्रेवी वाली सब्जी में सोया चंक. Okay, so how much of soya you will take depending on the our exchange list. Okay, and gravy में आप क्या ऐड करोगे, और उस रेसिपी से आपको कितने प्रोटीन्स मिलेंगे, कितने फैट्स मिलेंगे, एक अंदाज. प्रोटीन और फैट ही कंसीडर करना है, कार्ब्स नहीं. कार्ब्स भी. यस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. यस. नेक्स्ट. अभी 3 हो गए और 2 रेसिपीज चाहिए. Anyone can think of any other recipe? Ma'am, chickpea salad. Chickpea salad, very nice. Okay. And moong vegetable chila, moong dal vegetable chila. Chickpea salad, moong dal, vegetable chila. Okay. This is by Chetna. Okay. Yes. और एनीथिंग एल्स? और एक रेसिपी चाहिए, लाइक 5 स्टूडेंट्स ना, तो 1 2 3 4 1 मोर. यस इमराना. ब्रोकली सैलेड. ब्रोकली सैलेड, उसमें क्या क्या आएगा? जैसे ब्रोकली आप स्टीम करके हमने ले लिया, उसमें हम अनियन, टमाटो, कुकुम्बर, एंड देन आयरन के लिए आपने कहा अगर आयरन डेफिशिएंट है तो हम बीटरूट ऐड करके डाल देंगे, चंक्स करके, कट करके. एंड कैल्शियम के लिए उसमें थोड़ा तिल डाल देंगे, कैल्शियम मिलेगा उससे. देन नट्स एंड सीड्स डाल देंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे. देन थोड़ा सा मिनरल के लिए हम उसमें पिंक सॉल्ट ऐड कर देंगे, लेमन ऐड करके उसको अच्छे से स्टर करके, एंड देन हम सर्व कर लेंगे.
ग्रीन वेजीज अगर उसमें ऐड करना है थोड़ा सा, देन कुकुम्बर मिंट कट करके वो आप हमारे फ्लेवर के लिए अच्छा हो जाएगा। एंड अच्छा Okay. सा आपका रेडी हो जाएगा। And उसमें अगर प्रोटीन और ऐड करना है तो बॉइल्ड चना, बॉइल्ड चिकपी अगर अवेलेबल है फ्रिज में, या फिर आपने बॉईल करके रखा है, नहीं रखा है तो आप बना रहे हैं, तो जो हमारे पास मूंग के स्प्राउट है, मटकी स्प्राउट है, जो भी स्प्राउट है वो भी हम डाल सकते हैं, तो ऐड ऑन रहेगा प्रोटीन के लिए। ओके, अभी इमराना आपको क्या करना है ना, इस रेसिपी में आपको जो चटनी बोल रहे हो, देन यू आर टॉकिंग अबाउट लेमन, चाट मसाला, पिंक सॉल्ट, तो इसके कैलोरीज हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज इट विल गिव वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज। आपको क्या कंसिडर करना है, डेफिनेटली इस रेसिपी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा रहेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आउट ऑफ ब्रोकली, आउट ऑफ तिल, आउट ऑफ व्हाट यू हैव एडेड चिकपीस, राइट, तो इसमें से आपको प्रोटीन्स कितने मिलेंगे वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हाट अमाउंट यू विल कंसिडर फॉर दैट पर्सन टू मेक अ रेसिपी, ओके, और उसमें से आपको प्रोटीन्स कितने मिलेंगे। सो अभी मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि दिस इज अ प्रोटीन रिच रेसिपी, बिकॉज वी आर अवेयर कि अभी चलो अभी यही एग्जांपल ले लेते हैं कि चिकपीज में वी आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, राइट। If you take 30 grams of chickpeas, you soak it in water, you see वो कितने फूल जाते हैं। So how much of chickpeas are you going to add to the recipe, right? तो वो हाँ आपको कंसिडर करना है। चिकपीज में प्रोटीन्स है, नो डाउट। हाउ मेनी प्रोटीन्स? 30 ग्राम्स में 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन यू विल गेट, ठीक है, 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन। उसमें से आपने आधा एक्सचेंज यूज किया लेट्स से रेसिपी के लिए, सो हाउ मच प्रोटीन यू आर गोइंग टू गेट? 3.5। ब्रोकोली से कितने प्रोटीन्स मिलेंगे आपको? 4 ग्राम्स आई थिंक ना, कितने हैं एक्सचेंज लिस्ट में देखो। ब्रोकोली में 100 ग्राम्स ब्रोकोली में यू आर गेटिंग हाउ मेनी प्रोटीन्स? यस, एक्सचेंज लिस्ट में नहीं है ब्रोकोली अपडेटेड वाले? मैम ब्रोकली आपने कहा था स्पिनाच और नहीं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलीफ्लावर के इसमें नहीं है, मैंने ब्रोकोली ऐड किया है अपडेटेड लिस्ट में, देखो एक बार। पुराना वाला है, पुराना वाला नहीं, नया वाला जो है उसमें ब्रोकोली एडेड है। ब्रोकोली आई थिंक इट 100 ग्राम्स में यू गेट 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये आप याद रखो। तो actually how your recipe and what amount of recipe you are giving and उससे आपको प्रोटीन्स कितने मिलेंगे, and will this recipe be called as a high protein recipe, that you have to tell me, okay? yes, चलो starting with किसका था? विष्णु, आपने क्या बोला था? ओट स्मूदी, राइट। चलिए स्मूदी में बताइए प्रोटीन, आप क्वांटिटी कितना लोगे ओट्स का, उसमें क्या क्या ऐड करोगे और उससे आपको कितने प्रोटीन्स मिलेंगे बताइए। ओट्स लेंगे 30 ग्राम का। 30 ग्राम ओट्स, ओके, उसमें 5 ग्राम का प्रोटीन हो जाएगा। तो फिर उसमें लेंगे पीनट बटर, थोड़ा ऐड करेंगे। पीनट बटर 1 टेबल स्पून, जिसमें 3.5 ग्राम का प्रोटीन है। कितने पीनट बटर में? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून, सो 10 ग्राम। फैट्स कितने मिलेंगे उससे? 8 ग्राम। 1 टेबल स्पून में 8 ग्राम फैट्स है पीनट बटर ना, ओके, यस, हाँ ठीक है, 8 ग्राम 3.5 और यहाँ पे 5, तो 8 ग्राम प्रोटीन हो गए, 8 ग्राम फैट्स हो गए, ओके। नेक्स्ट आपने नट्स बोला था ना, नट्स ऐड करोगे आप? यस मैम, आलमंड उसमें ऐड किया है। कितने आलमंड्स, कितने प्रोटीन्स? हम 7.5 ग्राम अमाउंट। सो यू विल टेक लेट्स से 5 to 6 आलमंड्स लेट्स से, और उसमें हाउ मेनी प्रोटीन्स यू विल गेट? 1.25, तो 1 ग्राम कंसिडर कर लो, तो हो गए आपके टोटल 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो गए, राइट, विथ 8 ग्राम्स ऑफ फैट्स, ओके। सो दैट्स ऑल। हम उसमें हम मिल्क भी ऐड कर सकते हैं।
मिल्क, मिल्क से और फैट्स भी बढ़ जाएंगे उसमें. So अच्छा, milk से फैट you थोड़ा will बढ़ get, सकता okay, add milk, so 150 ml of milk minimum उसको चाहिए होगा because 30 grams oats Yes, ma'am. लिया है आपने, है ना? जी So मैम. in fact ज़्यादा ही लगेगा, but let's consider 150 for now. So milk से आपको मिलेंगे 5 grams of protein and 6 gram of fats. So आपके fats and protein अभी equal हो जाएंगे, 14 grams, है ना? Yes. Then हाँ मैम. 14 grams of protein. So 14 gram protein जो है ना आपको इस मील से आपको मिल रहा है. That is oat जी मैम. smoothie. ठीक है. Now फिलहाल we are not talking about ideally about carbs. Okay. अभी फिलहाल हम लोग जो है प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं. So 14 ग्राम अगर आपको इस स्मूदी से प्रोटीन्स मिल रहे हैं, so is it a high protein recipe or a low protein or medium moderate protein recipe you will consider? हमें मीडियम हो जाए. Yes. हमें मीडियम हो जाए. मीडियम तो हाई कितना होगा? हम जैसे कि 25 उसके आसपास. 25 के 20, आसपास. 25. हम It will उसमें हम depend on ऐसे डायरेक्ट हुए भी ऐड कर सकते हैं. क्या ऐड कर सकते हैं? डायरेक्ट हुए प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं. डायरेक्ट वे प्रोटीन. हाउ? हम उसमें मिलाएंगे. हाँ, हम उसमें मिलाएंगे इंग्रेडिएंट्स के तो वे प्रोटीन पाउडर. उसमें. वे प्रोटीन पाउडर. अभी आप सोचो ये रेसिपी बन रही है ओट्स से, ठीक है? ये सबके लिए है. ये रेसिपी बन रही है ओट्स से. यू आर एडिंग 150 ml ऑफ मिल्क, ठीक है? और उसमें आप नट्स भी ऐड कर रहे हो और उसमें आपने क्या बोला था? पीनट बटर ऐड कर रहे हो एंड वे प्रोटीन की पाउडर ऐड कर रहे हो. व्हाट डू यू थिंक इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी? ठीक होगी. बहुत ज्यादा थिक होगी, राइट? बहुत ज्यादा थिक होगी. तो इसमें इफ यू वांट टू सी वी आर अभी प्रोटीन पाउडर ऐड कर दोगे तो वो हाई प्रोटीन होने ही वाली है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, एनी काइंड ऑफ पाउडर सप्लीमेंट्स, ठीक है? अभी फिलहाल उसको बाजू में रखते हैं. नेचुरली थ्रू फूड्स हाउ यू कैन एनहांस द प्रोटीन रिचनेस ऑफ दैट रेसिपी, दैट वी हैव टू थिंक ऑन. ओके, सो फिलहाल हम लोग योगर्ट डाल सकते हैं. योगर्ट अभी मिल्क डाला है ना विष्णु, तो योगर्ट क्यों डालोगे? यू हैव यूज्ड मिल्क एज अ बेस, राइट? तो फिर वो सारा कर्ड हो जाएगा उसमें. आइदर यू मेक इट इन कर्ड और यू मेक इट इन दिस थिंग मिल्क. ठीक है. प्रोटीन को देखा जाए तो मिल्क की जगह कर्ड सही रहेगा ना? कर्ड मिल्क, यस. उसमें क्या डिफरेंस आएगा कर्ड और मिल्क में? ये छोटी छोटी डाउट्स है ना, वो अभी क्लियर हो जाएंगे आपके. मतलब ये सेशंस में ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? नाउ टेल मी, इफ यू आर एडिंग कर्ड एंड इफ यू आर एडिंग मिल्क, if you are adding milk, so what is the difference in calorific values of nutrients? हम दोनों सेम हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? हम दोनों सेम ही रहेंगे. दोनों सेम ही रहेंगे ना. what is the difference in these two recipes is, जो कर्ड वाला है you will get lactobacillus, right? तो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा नॉर्मल रहने के लिए वो हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो अगेन पीनट बटर कर्ड एंड वो कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा? एटलीस्ट पीनट बटर मिल्क में तो जा सकता है, लेकिन कर्ड में कैसे जाएगा? वो जा सकता है. आई हैव नॉट ट्राइड इट. किसी ने ट्राई किया है? एंड हैज एनीवन ट्राइड इट, कर्ड एंड पीनट बटर? नहीं मैम, कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, वो मिल्क के साथ ही जाएगा. वो मिल्क के साथ ही जाएगा, राइट? कर्ड तो मैंने कभी सुना भी नहीं है. आई थॉट मतलब किसी ने ट्राई किया होगा तो आई वाज नॉट श्योर, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि मैं तो ये खा नहीं पाऊंगी, ठीक है? सो एक्सेप्टेंस बाय पीपल वो भी हमें देखना है जब हम लोग प्लान करेंगे. सो दिस रेसिपी इज अ गुड प्रोटीन रेसिपी, बट along with that you have to keep in mind that you are giving good amount of fats also. Okay, so if you are giving good amount of fats, so what time is this recipe suitable for that patient, for that client? Morning. Morning time? Evening? What time? 5 o'clock 4 o'clock, ताकि वो पच 4 जाएगा. to 5 o'clock.
Okay, can this recipe be a meal replacer? Yes, ma'am. It Ma'am, can be कितना a मिल रहा meal है protein? replacer. 9. You are getting 14 grams of protein and 14 grams of fats. मैम 1 But ग्लास है खाली. 1 ग्लास से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1.5 of this glass. ठीक है, दिस इज 300 ml of glass. इससे थोड़ा सा ज्यादा बनेगा एंड यू हैव टू ऐड मिल्क मोर, ज्यादा मिल्क ऐड करना पड़ेगा इस रेसिपी कार्ब्स बनाने नहीं के लिए. कंसीडर करे हमने इसमें. हाँ, अभी फिलहाल हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. और कार्ब्स भी कंसिडर करेंगे तो द सोर्सेस विल बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. सो we are not adding any simple carbs. What I want you to understand is कि जब हम लोग protein rich recipe plan कर रहे हैं, so what other aspects we need to consider? Definitely हम लोग carbs consider करेंगे, but the choice of food is complex carbohydrate. So don't worry for now about carbohydrates. ठीक है, उसमें carbs भी रहेंगे. So do you think this recipe can be a meal replacer? Yes. मिल तो Yes, रहा है Yes, ma'am. Yes, We can ma'am. replace one milk with so many calories, right? 14 grams from protein, 15 grams from fats. So now coming to fats, if you consider this recipe, इसमें जो fats added है, that is saturated fat from this thing from milk. That is I think 6 grams, right? 150 में 6 gram fat होता है. Yeah, I think 6.5 by 6. Yeah, 6 grams of fats. लेकिन बाकी के जो फैट्स हैं दे आर हेल्दी फैट्स, राइट? पीनट Yes. बटर में Yes. यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड बट ओमेगा 3 फैट्स यू विल गेट मोर इन पीनट बटर, राइट? Nuts and oil seeds, some amount of saturated, but again polyunsaturated fats more in nuts and oil seeds. So the source of fats is good. So we can give this recipe as a meal replacer at night time. Okay, because oats is containing good amount of complex carbohydrates, so that will not have any this thing. On an average इस रेसिपी के कैलोरीज कितने होंगे? जस्ट काउंट, फटाफट काउंट करना है आपको. 30 grams oats will give how many calories? 170. 100 calories, right? Nuts and oil seeds you are adding, so let's say 15 grams of almonds consider करो, from there you will get 100 calories, right? Like walnuts डाल दिया आधा और आधा आपने almonds डाल दिया. So all together you will consider that in one this thing only. एक ही ग्रुप में आप कंसिडर करोगे उसको, उससे 100 कैलोरीज रफली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. पीनट बटर विल गिव हाउ मेनी कैलोरीज? 95. कितना? 95. 100. Yeah, so 100. Then Okay. milk will give you 150 100. ml of milk, so 100. In fact ज्यादा आएगा इसमें कैलोरीज, ठीक है? 150 तक जाएगा मिल्क से आई हुई कैलोरीज. एनीथिंग एल्स यू आर एडिंग टू दिस? आपने क्या क्या बोला था? मिल्क बोला था, पीनट बटर बोला था, देन ओट्स बोला था, नट्स एंड ऑयल सीड्स. This one. Then what else you can चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं मैम. क्या ऐड करना है? चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं. हाँ, चिया सीड्स यू कैन ऐड ओमेगा 3 फैट्स के लिए. इट विल आल्सो कंटेन गुड प्रोटीन्स, सो यू कैन ऐड चिया सीड्स, लाइक सोक्ड चिया सीड्स टू दिस रेसिपी, वो भी चलेगा. बट देन अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव टू ऐड सम मीडियम लाइक वाटर या ऐसा कुछ ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज थिकनेस ऑफ दिस विल बी वेरी वेरी ज्यादा हो जाएगा, ठीक हो, राइट. एंड पेशेंट को लेने के लिए डिफिकल्टी होगी, ठीक है? बट यू कैन ऐड चिया सीड्स, राइट? सो ओवरऑल हम ये इस रेसिपी दिस रेसिपी विल बी 400 कैलोरीज, ओके? और मे बी 450 कैलोरीज यू कैन कंसिडर. This one. 450 कैलोरीज का ये रेसिपी है. इसमें प्रोटीन्स कितना मिला हमें? टोटल प्रोटीन्स, जस्ट कैलकुलेट ऑन टोटल प्रोटीन्स नाउ. ओट्स से मिलती है हमें 5, और क्या था? मिल्क से मिला है हमें 5, नट्स एंड ऑयल सीड से हमें 2.5 मिला, एंड देन और क्या था? पीनट बटर में प्रोटीन कितना है? 3.5. 3.5. ओके, सो टोटल प्रोटीन्स हमें मिल जाते हैं 16 ग्राम. This one. Okay, so this is a good recipe as a meal replacer. You can add chia seeds definitely to this.
you will also have to add some medium to this thing, मतलब ये बैलेंस करने के लिए उसका थिकनेस, पानी या फिर अगेन मिल्क। इसमें लेकिन पीनट बटर फिर एडवाइस करना चाहिए ना कि वो घर में बनाए या उसे चर्न कर ले पीनट को, क्योंकि मार्केट वाले में तो वो कंटेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मिलने वाला नहीं है। मार्केट वाले में क्यों नहीं मिलेगा? मैम वो जो लेबल में रहता है उतना तो होता नहीं है, कोई उसको एनालाइज भी नहीं कर सकता क्रॉस चेक। अभी ऐसा है ना कि एवरीथिंग वी विल हैव टू प्रिपेयर एंड आस्क पीपल टू प्रिपेयर एट होम, ऐसा ये चीज हो जाएगी। सो व्हाट मतलब लोग अगर पीनट को चर्न करा दे पहले तो वो और बटर ऐड करवाते तो आई थिंक दैट इज नॉट कॉम्प्लेक्स टू मेक। Yeah, you can recommend people to make peanut butter. अभी हम लोग we are just deriving the values. तो वो जब काउंसलिंग का पार्ट आएगा तो at that time obviously we will be asking them to adopt an healthy lifestyle. So artificial से हम लोग घर में बनाते हैं तो that will definitely have a good this thing nutritive value rather than the ready-made foods. Okay? Yes. So this is one recipe which is good in proteins. Now again while planning this recipe you have to think of the other parameters also. जब patients के लिए आप like obesity है, diabetes है, ये वो, all these things you will have to consider. Okay? Yes. Now next recipe is sprouts. अच्छा हाँ, one second ना, to modify this recipe now, what modification you can do to make it more acceptable and to make it more healthy? इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ओट्स की स्मूदी में? यस, इसमें चिया सीड ऐड कर सकते हैं, मिल्क की कम क्वांटिटी में इसको हम ले सकते हैं। नाउ वन सेकेंड, आई विल जस्ट टेल यू हियर कि अभी ये एक रेसिपी है विच इज रिच इन प्रोटीन। ओके, इस रेसिपी को हम लोग ओवरवेट पर्सन, आई मीन ओबेसिटी वाले पर्सन को देंगे, अंडरवेट वाले पर्सन को देंगे, या नॉर्मल पर्सन को भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि इसका मॉडिफिकेशन कैसे रहेगा रेसिपी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रेसिपी को हम लोग ओबीस पेशेंट को दे रहे हैं तो उसमें क्या आएगा? चिया सीड्स एंड समथिंग दैट विल इंक्रीज BMR. So we can add cinnamon powder. Yes, you can add cardamom powder also. That also increases BMR and it contains a lot of antioxidants also, right? These 2-3 things you can add to this recipe. Hello. Yes, ma'am. Are you getting it? What I am trying to say? आपको ये लगेगा कि एक ही रेसिपी को लेकर क्यों बैठी है ये, है ना? But this I want to explain you because ये जो चीज है ना, ये आपको खुद करनी है बाद में। ओके, इसमें इतना डिटेलिंग में क्यों? बिकॉज वी नो दीज रेसिपीज ऑलरेडी, ये हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, बट हाउ टू मॉडिफाई ईच एंड एवरी रेसिपी अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल, ठीक है, आवर ओन चॉइस, तो वो आपको डिसाइड करना आना चाहिए। कोई बोलता है कि मैं ओबीज हूं तो मैं पीनट बटर ले सकता हूँ क्या? व्हाट विल बी योर आंसर? Quantity has to be less. Quantity has to be less and also you need to increase BMR ना। तो जिस रेसिपी में वो पीनट बटर ऐड करने वाला है वो ऐसी चाहिए कि जिससे आप उनका BMR बढ़े। तो दो चीजें हो जाएंगी, BMR की वजह से जो फैट्स है वो जल्दी बर्न होने में हेल्प होगा, एंड जो ओमेगा 3 फैट्स है दे विल गेट यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली। ओके, अनलाइक एन अदर पर्सन जिसको अभी वेट बढ़ाना है, तो आप क्या ऐड करोगे इसमें? इसी सेम रेसिपी में व्हाट यू विल ऐड टू इंक्रीज द वेट? हम कैश्यू Banana, dry fruits. Banana, very nice. Dry fruits, very nice. और मैम डेट्स भी ऐड कर सकते। dates, very good. Then और क्या ऐड करेंगे? Ma'am, we can give boiled eggs with it. मैम मिल्क चेंज कर देंगे, रेसिपी में अभी चल रहा है। हाँ, Okay. मिल्क चेंज कर देंगे, बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क खाना। will that be a healthy choice? No, ma'am. मैम डेंसिटी तो लो ही है दोनों की। Instead of giving buffalo milk, ठीक है, instead of giving buffalo milk because that is saturated fat, right? So why don't you opt for something which is a good fat?
सी इंक्रीजिंग ओबेसिटी मैंने कब एग्जांपल दिया था, ये मेरे एक स्टूडेंट थी प्रियंका, आज ज्वाइन नहीं झाली है, एक मिनट मैं देखती हूँ ज्वाइन आज नहीं है शायद प्रियंका। उसके एक पेशेंट थे प्रियंका के, उनका वेट गेन नहीं हो रहा था, ठीक है। सो हाउ वी नीड टू प्लान फॉर वेट गेन पेशेंट्स ऑल्सो। हम लोग कैलोरीज तो बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका एक क्वेरी था, आई थिंक आप ग्रुप में से ही किसी का था, हाँ अर्चना, इन दिस डाउट सेशन में, शी हैज नॉट जॉइन, ओके ठीक है। तो जब वेट गेन कराते हैं ना हम लोग, ये चीज हमेशा याद रखो, वेट गेन हम लोग कराते हैं, पेशेंट्स को हम लोग कैलोरीज दे रहे हैं, so during the process of metabolism more toxins are going to be produced in body, okay, that can cause lethargy to that patient. So in toxins ko lethargy, why? Because these toxins are also destroying our normal cells, normal healthy cells, okay. तो ये सेल्स डिस्ट्रॉय होने के कारण बॉडी में फटीग, माइल्जिया, बॉडी पेन, ये वो, नींद बहुत ज्यादा आना, ये चीजें होती हैं। तो अभी हमें क्या करना है ना, वी नीड टू बैलेंस दैट। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग कैलोरीज, maybe through a good source, maybe through something like fats, you are adding more carbohydrates to the to diet. In order to neutralize that, you need to add some antioxidant foods that are rich in antioxidants also, okay. maybe अभी इसमें antioxidant rich foods क्या add करेंगे, okay. So cinnamon, coffee and everything that also have an antioxidative effect. So will you plan cinnamon coffee to this client who is on weight gain? नहीं, क्योंकि वो BMR तो वैसे ही मतलब उसका हाई है, वो और हाई है। Increase BMR, right? Though they have antioxidative properties, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं करेगा कि जो हमें चाहिए। What we want is कि उसके जो एक्स्ट्रा फूड्स हम लोग दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाए प्रोटीन बनाने के लिए एंड बॉडी में फैट्स बनाने के लिए, राइट, हेल्दी फैट्स बनाने के लिए। तो इन कंडीशंस में हमें इन लोगों को ओमेगा 3 फैट्स ज्यादा देने हैं। Along with that, just because we are increasing on carbohydrate, proteins as well as fats, in order to neutralize these toxins, we need to give them some herbal detox drinks, okay, which will not ideally increase BMR, because herbal detox drinks, they will have antioxidative effect in body in a different way. It will only try to neutralize or convert those free radicals into less toxic substances rather than मतलब एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट जो दूसरे इसका है कि बीएमआर बढ़ा के फिर टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना, ये वो, देन इन दैट सिनेरियो फिर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। पेशेंट विल फील हंग्री एंड देन ही इज ईटिंग एंड टॉक्सिन्स बनते जा रहे हैं, फिर उसको न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, लिथार्जी बढ़ती जा रही है पेशेंट में। तो ये नहीं करना है हमें, ओके। सो हम लोग क्या दे रहे हैं पेशेंट को, क्या इंटेंशन से दे रहे हैं, वो भी हमें याद रखना है। Yes, so now into this recipe. चलो fast. What you will add? Yes, dry fruits आपने बोल दिया, और क्या बोला था आपने वेट गेन के लिए? Dry fruits and banana. Banana अगर आप कर रहे हो तो again that is a pulpy fruit. It will add thickness to the recipe. So again आपको maybe water add करना पड़ेगा उसमें, if you don't want to increase on calories. या फिर you can add like 50 ml of cow's milk. अभी buffalo and cow's milk में हमारा डिस्कशन चल रहा था। Why not buffalo milk? Because buffalo milk में जो फैट्स रहेंगे those are saturated fats. Cow's milk में भी saturated fats है, but if you compare both the milks, buffalo milk में almost double fat रहेंगे, okay? फिर उनके मेटाबॉलिज्म में एनर्जी विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स इट एंड पेशेंट को फिर वो जो मैंने अभी बोला था वो सिम्टम्स दिख सकते हैं, राइट। क्योंकि हम लोग जो है ना फूड के लिए, हम लोग फूड डॉक्टर्स हैं, ये आप समझ लो, ठीक है। फूड के साइंस में हम लोग डॉक्टर्स हैं। ये इन फूड्स को हमें प्रॉपरली मतलब क्यूरेटिव बेसिस पर हमें यूटिलाइज करना है। जस्ट बिकॉज कैलोरीफिक डाइट प्लान बनाना है, तो मैंने बोला था आपको सेशन में कि कैलोरीफिक डाइट प्लान बनाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अभी आपको 500 कैलोरीज की रेसिपी इजीली बना दी विष्णु ने,
ठीक है, तो 1500 का प्लान वो इजीली बना ही सकते हैं। अभी भी मैं बोल दूंगी ना, तो ही विल मेक समथिंग, उसमें एरर्स रहेंगी, चलो वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ही विल बी एबल टू मेक, राइट। वो डिफिकल्ट नहीं है, बट चॉइस ऑफ फूड्स एंड व्हाट विथ व्हाट कंडीशन, फॉर व्हिच कंडीशन वी आर गिविंग डाइट प्लान थ्रू आउट डेज डाइट प्लान, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको लाइक क्लिनिकली समझना चीजों को जरूरी है, ओके। हाँ, सो हमने क्या क्या ड्राई फ्रूट्स ऐड किया, देन बनाना ऐड किया, व्हाट एल्स वी कैन ऐड, द बेस्ट यू कैन ऐड, द बेस्ट थिंग यू कैन ऐड, एंड वेरी वेरी सिंपल। यस, सोचो, थोड़ा सोचो, एक्सचेंज लिस्ट पे भी है वो। मैम कोकोनट का कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? पीनट, पीनट ऐड कर दिया, पीनट बटर। क्या ऐड करेंगे? ये दोनों रेसिपीज लिखनी है सबको, ठीक है। ओट्स स्मूदी फॉर वेट गेन, ओट्स स्मूदी फॉर वेट लॉस। पहले वेट लॉस की डिस्कस की, अभी वेट गेन की डिस्कस कर रहे हैं। यस, क्या ऐड करेंगे? और जो स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली यू हैव टू मेंशन समवेयर, आप डायरी बना के रखो, बिकॉज ये रेसिपीज है ना, रेडीमेड रेसिपीज है, आप ऐसे ही ऐड कर दोगे पेशेंट्स को मील रिप्लेसमेंट्स के लिए। Isn't it a good recipe? एक ही रेसिपी बना लो, वो ले लो, एंड डोंट टेक एनीथिंग एल्स। सैलेड्स लेना है, ये करना है, वो करना है, झंझट ही नहीं है। What else you can add to make this recipe more healthy? मैम स्किम्ड मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो क्या? No, मैम जैगरी ऐड करेंगे क्या? you are very close. मैम हनी, From khajur, Honey. dates. मैम आप बहुत बार बोले थे हनी के बारे में। honey क्यों ऐड करेंगे? The comparison between dates, jaggery and honey. Okay, so dates you can add if the patient is deficient of this thing. ठीक है, iron. But dates will not provide antioxidants as honey will do. ऑलरेडी हमने कैलोरीज उसको दे दी है, अच्छी खासी कैलोरीज उसको दे दी है, राइट। नाउ अभी उन कैलोरीज को मेटाबोलाइज करने के लिए वी नीड सर्टेन एंजाइम्स, वी नीड some antioxidative properties, so that 500 grams of honey to this recipe will do a good for that client, ठीक है। 5 या even 2 spoons you can add, because simple carbohydrates कहीं भी नहीं है इस रेसिपी में, simple carbs कहीं भी नहीं है, right? Yes ma'am. There are no simple carbs, there are either disaccharides through milk या फिर polysaccharides in form of soluble fibers है oats में। Apart from that, no other source of carbohydrates. So if you are adding honey to this recipe, this will help you in a great extent. 1 minute. हाँ, okay, understood everyone? Yes, ma'am. रेसिपी आपको याद रहेगी सबको? मैम अभी एक बार मुझे बोलो, सॉरी, एक बार रिपीट कर देंगे दोनों का, गेन का और लूज का। हाँ, क्या यस, वेट लॉस के लिए क्या क्या रहेगा इसमें? सो Oats मे बी milk. वेट लॉस के लिए यू कैन मेक द रेसिपी इन वाटर ऑल्सो, वेट लॉस के लिए, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वेट लॉस यू वांट टू ब्रिंग। बहुत मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट है, यू कैन नॉट ऐड मिल्क, ये भी आपको याद रखना है। सो फॉर वेट लॉस डोंट ऐड मिल्क, यू कैन ऐड ओट्स, पीनट बटर, देन और क्या ऐड किया था, नट्स एंड ऑयल सीड्स। Okay, you can also add banana to this recipe, क्योंकि बनाना में अगेन soluble fibers are there, and cinnamon and और क्या बोला था मैंने, हाँ, cardamom also is also good for weight loss. So उसका 1 spoon or like 2.5 grams, like half a spoon, and 1/4 spoon of cinnamon powder. Okay, मैम इसमें हनी नहीं ऐड करना है ना, वेट लॉस इसमें हनी नहीं ऐड करोगे तो अच्छा है। बट इफ पेशेंट, अगर पेशेंट को मतलब चाहिए समथिंग लाइक स्वीटनर या टेस्ट के लिए कुछ चाहिए,
you can add dates or honey. That is fine. Okay. Then weight gain के लिए you can add milk. ठीक है, milk में ही बनाना है. Then you can add oats रहेगा, milk रहेगा, banana also you can add. Or instead of banana you can add 5 or 10 grams of honey. ठीक है, nuts and oil seeds वो group add कर सकते हो. And what else was there? Peanut butter. Okay. मैम लॉस के लिए स्किम मिल्क ऐड कर सकते हैं ना? Skim milk will also contain carbohydrates. Skim milk के carbohydrates बताओ मुझे कितने हैं? 250 grams में you are getting 16 grams of carbohydrates. ठीक है? And these are disaccharides. So you can add. It depends on how much weight loss you want to bring. ठीक है? मतलब मैम अगर बहुत ओबीज है तो हम काऊ मिल्क के लिए जाएं, और अगर बहुत ओबीज है तो उसको हम लोग मिल्क ऐड ही नहीं करेंगे. ऐड ही नहीं करेंगे. वाटर में ही ये रेसिपी प्लान करेंगे, पानी में. तो मैम ठीक है, ओट्स की वजह से उसका पेट भर जाएगा. चिया सीड्स ऐड करना पड़ेगा. चिया सीड्स, यस वो रह गया. मंजिंदर मैम चिया सीड्स भी लिख लो. तो ऐसे में मैम बनाना भी नहीं ऐड करेंगे अगर बहुत ओबीज है तो? बनाना वही मैं बोल रही हूँ, आइदर बनाना, डेट्स और हनी, वो आप ऐड कर सकते हो थोड़े क्वांटिटीज में. लाइक हनी भी ऐड करोगे तो 5 ग्राम्स. वेट गेन में 10 ग्राम्स ऐड कर सकते हो आराम से. मैम अंजीर ऐड कर सकते हैं? वेट गेन में नहीं, सॉरी वेट लॉस में नहीं ऐड करेंगे. वेट गेन में यू कैन. मैम पाउडर मिल्क मतलब 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? आइदर वाटर और पाउडर किस में किसके लिए? ये लूज के लिए अगर चाहिए ही है, अगर पेशेंट को कि वेट लॉस के लिए पाउडर्ड मिल्क. तो पाउडर्ड मिल्क मतलब स्किम मिल्क पाउडर यू वांट टू से, या होल मिल्क पाउडर? स्किम मिल्क का ही होगा अगर लूज कराना है. अगर बहुत ओबीज है तो फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स देखो, प्रोटीन्स है उसमें, कार्ब्स देखो एंड अकॉर्डिंगली ऐड. फिर वो दूध में नहीं बनेगी, लाइक पानी में बनेगी और उसमें ये ऐड कर दो. ठीक है, वैसे वाली रहेगी वो रेसिपी. ओके. यस. और वेट गेन के लिए हम लोग मैंने बताया आपको, वैसे वो सारी चीजें ऐड करनी है. वेट गेन में भी चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं ना? वेट गेन में डोंट ऐड चिया सीड्स इनिशियली. ठीक है, बाद में हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन इनिशियली इट इज लाइक अ सोर्स ऑफ फाइबर्स, तो थोड़ा वो फुलनेस रहेगा. वी नीड टू गिव मोर ऑन लाइक मोर कैलोरी डाइट ना. तो इनिशियली मत दो, या फिर यू कैन गिव इट लाइक इन बिटवीन दिस थिंग, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज उनको देनी है. तो फिर अगर कैलोरीज देनी है तो फिर इफ द पेशेंट इज फीलिंग सैटिस्फाइड, एंड यूजुअली जो अंडरवेट लोग होते हैं ना, उनको खाना खाया नहीं जाता है. तो वो एक दिक्कत हो जाती है कि इफ यू आर गिविंग फाइबर डाइट, देन वो उनका पेट भर जाएगा एंड दे विल नॉट हैव द मील, अप्रोप्रिएट मील. फिर हम लोग कहाँ से 2500 3000 कैलोरी प्लान उसको उनको खिलाएंगे? वो चीज है. ठीक है. यस. देन द नेक्स्ट रेसिपी स्प्राउट्स था. हाँ, स्प्राउट्स का किसका था? यस, मनदीप जी बताइए इसकी रेसिपी क्या बनाएंगे, और इसमें कितने प्रोटीन्स आएंगे, फैट्स. अभी इसमें कार्ब्स ज्यादा आएंगे. उसमें हम लोग नट्स एंड ऑयल सीड्स ऐड कर रहे थे, तो फैट्स का कैलकुलेशन किया हमने. इस रेसिपी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आएंगे, राइट? अच्छा, फैट्स, पनीर भी ऐड किया है तो फैट्स. ठीक है, बताइए. हाँ जी मैम. 15 ग्राम मतलब मूंग दाल के ओट्स. ओके. 15 ग्राम मतलब 15 ग्राम दाल के, मतलब ओट्स बाद में बनाने के पहले 15 ग्राम मतलब वो मूंग दाल. होल मूंग दाल नहीं, होल मूंग. स्प्राउट्स बना रहे हो ना, तो 15 ग्राम स्प्राउट्स. प्रोटीन कितने लेंगे? लिख लो ये सारी चीजें. 3 ग्राम्स. ओके. 50 ग्राम्स लिया है मूंग दाल. 50 या 15? हाँ जी 15. अच्छा 15 15 ग्राम हाफ एक्सचेंज मूंग, तो 3.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. आगे जी मैम. फिर 5 ग्राम आलमंड. आलमंड, तो 1 ग्राम प्रोटीन. आगे
जी मैम। फिर उसके बाद 25 ग्राम टमाटो, टोमेटो 0 प्रोटीन, 25 ग्राम कुकुम्बर, 0 प्रोटीन, 40 ग्राम पनीर, 40 ग्राम पनीर में 7 है ना, 7 Yes, ma'am. ग्राम प्रोटीन। और मैम उसको बस गार्निश करने के लिए लेमन हो गया, उसके ऊपर हो गया। आप लेमन ऐड करोगे, टोमेटो कुकुम्बर फॉर इम्प्रूविंग इट्स एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज एंड फाइबर कंटेंट। ओके, सो लेमन ऐड करोगे, ये वो हो गया, ठीक है। तो दिस इज गिविंग यू 10.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अभी मुझे बताओ, स्प्राउट्स में आप कच्चे स्प्राउट्स है, उसमें पनीर कैसे डालोगे? मैम सौते करेंगे थोड़ा सा दोनों, थोड़ा सा सौदे करोगे और फिर ऐड करोगे। घी जी, में, मैम। हाँ, घी में या ऑयल। मैम स्टीम भी तो कर सकते हैं स्प्राउट्स को। स्प्राउट्स को स्टीम, यस यू कैन डू, उसमें प्रोटीन्स तो रहेंगे अच्छे, हाँ मैम। लेकिन ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसका, फाइबर्स जो है ना, फाइबर कंटेंट कम हो जाएगा। सो प्रोटीन्स के लिए यू कैन स्टीम, और फिर उसमें ये पनीर मतलब अप्रोप्रिएटली जाएगा, जी मैम। ठीक है। वेट लॉस में कर दे मैम ऐसा, फिर बॉईल कर दे। हाँ, वेट लॉस में आप कच्चा भी दे सकते हो और बॉईल करके भी दे सकते हो, लेकिन इस रेसिपी के लिए आई गेस आपको बॉईल करना पड़ेगा, क्योंकि कच्चे इसमें पनीर है ना, उसकी टेस्ट वो कॉम्पेटिबल नहीं होगी, मुझे ऐसे लगता है। करेक्ट। जी, ये बॉइल ज़्यादा हाँ, बॉइल करके स्प्राउट को हल्का सा, तो ये ज़्यादा टेस्टी वाला मतलब इसका टेस्ट आएगा। अगर कच्चा डालते तो उतना टेस्टी नहीं लगेगा। 2 to 3 Okay. मिनट सौते करके ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। शी सेइंग कि भाई सौते करेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है उसका। हाँ हाँ, उसको सौदे करेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। हम लोग वैसे ये कंसिडर कर सकते हैं। अभी इसमें ना, इसमें फैट्स देखो, इस रेसिपी में फैट्स कितने आएंगे, 8 ग्राम ऑफ फैट्स एंड 10.5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट्स है, अच्छा एक मिनट, हाँ इसमें भी फैट्स रहेंगे ना, आलमंड डाला है उसमें, उसमें फैट्स कितने रहेंगे, आलमंड का 1/4 एक्सचेंज, तो 3 ग्राम फैट उसमें मिल जाएंगे, 1/3 एक्सचेंज है आलमंड का। तो 11 ग्राम ऑफ फैट्स एंड 10.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसमें ज्यादा फैट्स जो है ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ सैचुरेटेड फ्रूट्स। सैचुरेटेड फैट के इसमें ये ज्यादा रहेगा। तो अभी आप इसको क्या कर सकते हो ना, दिस कैन ऑल्सो बी अ मील, ये एक मील हो सकता है। इसमें आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 20 ग्राम्स ऑफ सॉरी 15 ग्राम्स ऑफ मूंग, टेक 20 ग्राम्स ऑफ मूंग। थोड़ा सा मूंग की क्वांटिटी बढ़ा दो, ठीक है, तो वो क्वांटिटी वाइज भी ज्यादा हो जाएगा, एंड यू आर एडिंग पनीर टू इट, सो दैट इज गोइंग टू गिव एपेटाइजिंग फीलिंग। ओके, अभी इस रेसिपी को, इस भेल को आप और हेल्दी बनाने के लिए, फॉर वेट लॉस के लिए दे सकते हैं ये रेसिपी। पनीर है ना मैम, तो फिर पनीर अगर हम लोग निकाल दे तो वेट लॉस के लिए दे सकते हैं। लेकिन उसको एपेटाइजिंग फीलिंग कहाँ से आएगा, फिर क्या करोगे उसके लिए? मैम इसमें कंप्लीट प्रोटीन भी तो नहीं हो रहा। What you can do is 20 ग्राम पनीर डाल दो, ठीक है। You take 20 grams of moong, okay, and then you can add more vegetables to this. Vegetables as in yes, ब्रोकोली भी जाएगा इस रेसिपी में, तो ब्रोकोली ऐड कर सकते हो। बीटरूट भी जा सकता है, कैरेट जा सकता है। हाँ, कैरेट भी जा सकता है, यस। मतलब ये तो ये हो गया हमारा सैलेड का पार्ट हो गया, लेकिन वेजिटेबल्स का मैं सोच रही थी उसको ज्यादा हेल्दी बनाने, वेट लॉस। मैम पनीर के बदले एक ही मिनट ना, चितना 1 मिनट, शी वाज सेइंग समथिंग। यस कविता, plantain vegetable, you can add, but like okay, how is it good for protein? हाँ, प्लांटेन फॉर डायबिटीज इज गुड बिकॉज एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें, फाइबर्स बहुत ज्यादा है, मिनरल्स यू विल गेट मोर, सो
it is though a good source, but as a protein, this thing I'm talking about, you can add definitely plantain. It's a kind of vegetable. यहाँ पे मैं शेयर करूँ क्या वो vegetable कैसे दिखता है? One That second. green plantain, right? The हाँ, green plant. green plantain. One second ना, इसकी इमेज में यहाँ पे शेयर करती हूँ. I'm getting green plant, this thing. ग्रीन प्लांट के इमेजेस मुझे मिल रहे हैं यहाँ मैम पे. ग्रीन आप ये डालो ना कि एक मिनट, ग्रीन बनाना डाल दो आप, आ जाएगा. अभी एक मिनट. One second. I had seen this image in a different way. ये banana दिखा रहा है. So you are talking about this as a vegetable? Yes, Kavita? One second. I'm just sharing. 1 second. Because vegetable plantain is a different this thing. वो मैंने अलग सा देखा था. You're talking about this banana or you're talking about that vegetable? Can you see my screen? Vegetable, yeah, because even I had seen वो vegetable अलग ही दिखता है. One second. Yes, ma'am. Plantain. One second. No, it's again showing banana only. I don't know why it is showing banana. I have one image of plantain in my PPT. No, it's showing banana only. Manju, so this vegetable is in form of banana, you were saying? Yeah, but no, it's again showing banana only. I have got that image of plantain in, I think, vitamin D, this thing. I have explained also in that PPT about plantain. But here now I am not getting it. I'll share you the video, image later on. Okay, once I find it, I will show you the image. It's a green leafy vegetable, no? No, not leafy. It looks a little bit different. मैं आपको वो image दिखाती हूँ उसकी. ठीक है? Yes. So it is a good source of vitamin D and I think vitamin K also. So that is why it is being given for diabetes. You can add good source of fibers. Yes, good source of fibers also. So actually all green leafy vegetables, no, they are good source of fibers. They are a good source of vitamins and minerals. It depends on how you are adding to your recipes. उसको कुक करने के बाद में मैक्सिमम लाइक विटामिन्स जो है वो कम हो जाते हैं उन रेसिपीज में. एंड इंडियन मेथड ऑफ कुकिंग इज वेरी डिफरेंट. लाइक वी कुक फूड
बहुत सॉफ्ट होने तक हम लोग कुक करके देन वी कंज्यूम दैट. But in foreign countries, they are consuming it semi-cooked or in a raw form. So they get more vitamins and minerals in small amount of their diet. Okay, तो वो चीज एक है. So yes, अभी now coming to our protein diet, but this plantain vegetable, no, it will not contain that much protein. We can make it more healthy as a therapeutic this thing. If we consider, we can plan to add in this recipe. Okay. Yes, Kavita. Yeah, you can plan in weight loss. You have to plan that in weight loss only. In fact, in weight gain patient, if you plan a lot of plantain and such vegetables in raw form specifically, then it will not have a bad effect on body. In fact, it will detox their body. It will add fibers to their meals, but the intent of gaining weight will not be achieved. Okay, so that is why if you want to give that, then give it in juice form, in an extract form. So if you are giving it in extract form, you are supplying only vitamins and minerals. You are not supplying fibers. Okay, so their appetite will be like good, and the detoxification is also happening, and they can eat good amount of high quality carbohydrates and fats. Okay, so उनका मील जो है ना वो कम नहीं होगा. Yes, coming to this recipe, 20 grams of moong you can add. Then now paneer also you can add for weight loss patients because it is going to give satiety. But then again, if the weight gain is along with PCOD, then you do paneer को नहीं add करना है. Instead of that, what I was thinking, instead of adding paneer, why don't you think of soya chunk or tofu? Yes. हम मखाने भी तो ऐड कर सकते हैं या रोस्टेड चना. मखाना how you will add to sprouts? हम वो रोस्ट करके वो क्रंची इफेक्ट दे देगा तोड़ के. मैम बाद में ऊपर से डालने के लिए मखाना अगर ऐड करोगे तो बिकॉज ऑफ ये तो गीला रहता है ना, सो वो पूरा सॉगी हो जाएगा एंड इट विल बी चूई, इट विल बी मोर चूई, इट विल नॉट हैव दैट क्रंची इफेक्ट. मखाना लिटिल बिट, इट इज वेरी हाइग्रोस्कोपिक. यू कीप इट, क्लाउड्स अगर आए एंड यू कीप मखाना प्लेट आउटसाइड, नो, it is very hygroscopic. वो चूई बन जाता है immediately. So मखाना separately you have to give to patient. ठीक है, मखाना you can add like crushed form में you can add to smoothies for like fibers and calcium content and also like proteins it has. Yes, you're talking about roasted chana. या groundnut. Roasted chana, yes, you can add roasted chana also, groundnut also. Freshly add it and have it because वो बाद में फिर उसकी consistency change हो जाएगी. Okay. Okay. Yes, you can add groundnut. Then इसमें ना better option is adding soya chunks or adding this thing tofu. For if like for weight loss patient, if it is a female, okay, if you are adding such foods, it will bring a real good result because that will balance hormones also and increase the protein content of that recipe. Okay, right? Okay, Mandeep ma'am, आपको समझ में आया चॉइस ऑफ फूड कैसे करना है? Yes. If you want to add paneer, don't add 40 grams of paneer. That is too much if you are wanting to lose weight. Add less paneer. You can add other vegetables and other sources. Okay. Yes. Now, what is the next recipe? मैम इसको कंप्लीट प्रोटीन करने के लिए मूंग दाल के साथ कोई और दाल भी जरूरी है क्या डलनी? Mixed sprouts you can take. Take mixed sprouts. Okay. स्प्राउट में मैम वो चना वाला स्प्राउट भी आ जाता है. Chana, you can add chana, you can add green peas, you can add green peas as in not the fresh ones, the dried green peas which are soaked and then maybe sprouted, or you can just cook it and add to your this thing. Then what else you can add? Matki also you can add, more beans. Okay. Then you can add loha जो है वो add कर सकते हो. Okay. So Right. all this mixed sprout बना के then you can ask patient to have. Now, in order to do this, what you will suggest patient? Everyday patient is not going
going to soak it separately and have it ना, कितना झंझट हो जाएगा पेशेंट के लिए. So what 2 दिन का तो वो रख सकते हैं बना के, मतलब स्प्राउटेड होके वो 2 दिन 3 दिन तो चल जाता. sprouted होने से पहले what you can do is you can mix all the pulses together, ठीक है. And फिर उसके बाद में जब उसको sprouted बनाना है, at that time again you can मतलब soak करके 12 hours of soaking and फिर then उसके बाद में उसको tie करके रखेंगे. After 6 hours every pulse will start to sprout, and that time Right. you can ask patients to have. And then इसको अब if it is in a mixed form, see मूंग वाला जो है ना, patients can have it as it is, the मूंग this thing, because it tastes a little bit better than the other pulses. But if it is a mixed pulse, then ask them to cook it for a while, because in raw form it can cause indigestion as in bloating and all, because of high fiber content. So just steam it for some time and then have it. That way you can tell them. Got it, everyone? मैम Yes. इसमें टोफू ऐड करना सही रहेगा या सोया चंक्स? Anything you can ask which is preferred by the patient. Soya chunks will contain good amount of proteins than tofu, but tofu will contain those hormones which are good for females. So if it is like even soya chunks do contain some of it. So male patient के लिए it is not recommended. For female patients you can recommend it. Okay. Okay. So for like if you are giving this recipe for a lady who is having iron deficiency, what other things you will add to this? Pomegranate, Pomegranate, yes. What else? Beetroot. चुकंदर, Beetroot. carrot. Beetroot contains iron. Manjinder ma'am. Less amount of iron also. Beetroot is ideally good for good as an antioxidant. So isoflavones है उसमें कि जो which has an antioxidative properties. But ideally it does contain very less amount of iron. So if a severely ill patient comes to you with an iron deficiency, बहुत ज़्यादा severe iron deficiency, you plan beetroot, उसका iron नहीं बढ़ने वाला है. You need to add some good source of iron. So what is a better source of iron? Date. Dates, black raisins. Okay, they contain good amount of iron. Sesame seeds, rather than sesame seeds, it's flax seeds. Flax seeds and garden cress seeds contain good amount of iron. Okay, but black sesame seeds you're talking about? Okay. I think the values are same for white and black. I will just recheck it and let you know. Okay. Sesame seeds will contain more amount of calcium than iron. Flax seeds will contain more amount of iron than calcium. Okay. Garden cress seeds again very rich source of iron. It also contains calcium, but it is good source of iron. So these seeds you need to give, but in what form? If you add these two sprouts, they need to be chewed properly, right? To have a more beneficial effect on body. Like iron उसका release होने के लिए they need to be chewed. If you are having those with a food which is like high in fiber content, the chewing will not happen properly in mouth, and they might remain undigested and just pass into stools. तो हमें क्या करना है ना, take it in powdered form, add it to your smoothies or in other like just as a powder also some people can consume. In laddus के form में आप patients को बोल सकते हो लेने के लिए. But for this recipe I am talking about, इस recipe में आप क्या add कर सकते हो जिससे iron बढ़ेगा patient का? Yes. How can you make this recipe good in iron? Nuts and oil seeds, though these seeds are rich in iron, उसकी quantity देखो. In quantity in book, nutritive value of Indian foods, you will see big values for iron, big values for calcium, but also they are in big amounts. So you cannot consume 100 grams of sesame seeds, 100 grams of flax seeds in a day.
या कोई भी रेसिपी में आप नहीं ऐड कर सकते उसको. So you need to consume these recipes separately in a powdered form or in a soaked or in उसकी खीर बना के ऐसे आप ले सकते हो, लेकिन not with a high fiber diet. ठीक है. मैम इसमें स्वीट पोटैटो ऐड कर सकते स्वीट Ma'am, पोटैटो, कोरिएंडर leaves. कितना ऐड करोगी कोरिएंडर इसमें आप? Okay, coriander you can add coriander and mint also. Mint also contains good amount of iron, right? Now to this recipe क्या जाएगा properly is your मैम ब्रोकोली डाल सकते. broccoli contains iron. Broccoli Iron. इसमें जाएगा. या फिर वो आई डोंट नो मतलब कौन वो शेपू बोलते हैं ना, बट देन आई डोंट नो मींस वो किसी को पसंद आता है. इसमें नहीं जाएगा वो चेतना. शेपू will not go into this. हाँ. Drumstick leaves can go, लेकिन again to this recipe can you add drumstick leaves? How compatible it is for the patient? Okay. What I feel is इस recipe को you can add black raisins and dry अंजीर, figs, right? Sprouts की recipe है, okay? So almost the same consistency of other food you're adding, so it can get mingled easily. So dry fruits like black raisins contain good amount of iron, anjeer, that is figs, contain good amount of iron, and it will become a real proper meal for a person. It can become, if you're adding soya chunks, sprouts, or tofu and sprouts, or small amount of paneer and sprouts, along with that some chaat masala, along with that some nuts, that will again give some amount of simple carbohydrates also. So this recipe will be better for a iron deficiency person. On top of it, you can squeeze a little bit of lemon, so that will add vitamin C to it. मैम ड्रेसिंग के लिए हम तिल का पेस्ट ऐड कर सकते हैं. किसका? ड्रेसिंग. का. तिल का because पेस्ट वो थोड़ा ड्रेसिंग के सा लिए. यस. वो होना चाहिए ना, नहीं तो ड्राई हो जाए खाने. ड्रेसिंग के लिए तिल एंड फ्लैक्स सीड्स का पेस्ट यू कैन ऐड, दोनों का. राइट. So good amount of iron and this thing. Okay. Yes. So I think अभी हम लोग stop करेंगे. We have discussed 3 recipes. I hope you have understood. Now about this recipe, sprouts नहीं 3 नहीं, एक ही 2 ही हो गए क्या हमारे? अच्छा, हम 2 हो गया. कोई नहीं, it is okay. But I know next time while planning recipe, you have multiple ideas in your mind now, right? Now to this recipe for a weight gain patient. For a weight gain patient, what you will add? हमने वेट लॉस के लिए पनीर हटा दिया था, अभी वेट गेन के लिए उसको ऐड कर दो, पनीर को. ठीक है. Then what else you can add to make it more? नट्स का चॉइस चेंज कर देंगे. Nuts, more of nuts you can add. अभी हमने we had added in only in form of a salad dressing, right? अभी इसमें nuts, frankly nuts you can add, like a little bit of crushed nuts, right? Then और क्या ऐड करोगे आप? ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते. Olive oil you can add, yes, to make it more rich in unsaturated fats. योगर्ट ऐड कर सकते हैं. So yogurt हो गया, olive oil हो गया, sprouts हो गया. How will it taste? It will taste good ना. उसका जो ड्रेसिंग रेडी होगा ना वो अच्छा लगेगा. हाँ, उसमें थोड़ा सा हनी जा सकता है along with salt. Yes, okay, honey. Pepper. हमने जब we had prepared a recipe sweet and sour tofu, ठीक है, तो ये रेसिपी आई गेस वैसी लगेगी, स्वीट एंड सार. हनी भी ऐड कर रहे हैं उसमें और योगर्ट भी ऐड कर रहे हैं, तो लिटिल बिट ऑफ दैट टेस्ट. तो ये जो रेसिपी रहेगी, इट विल नॉट बी अ टिपिकल ड्राई वाला स्प्राउट, इट विल बी लाइक योगर्ट है इसमें, तो थोड़ा सा उसका कंसिस्टेंसी जो है ना वो चेंज हो जाएगा. इट विल बी लाइक जब हम लोग इनटू होटल्स लाइक 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में जो सैलेड्स होते हैं, मेक्सिकन सैलेड्स, तो उस दैट काइंड ऑफ रेसिपी दिस विल बी.
Okay, if you are adding honey along with tofu, along with what you are saying, paste of this sesame seeds and flax seeds, Yes, ma'am. so it will be a that kind of recipe. Okay, so this can be given for weight gain. Yes, any doubts, any questions? See, अभी इसमें और भी चीजें आएंगी. मतलब it's not that this is the final thing that we want to give. There can be a number of variations. It depends on like what type of client it is and what are his needs, what are his food choices. All this is going to matter. But why I wanted to take this is because you understand how to plan recipes. अभी विष्णु आपको समझ में आ गया ना? यस मैम। अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है पिक्चर? जी मैम, अभी पहले से ज़्यादा आ गया। So you will get to understand how to when we are planning a menu. Every meal should be something that is thought, that you have given like multiple thought to it. ऐसे नहीं है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं तो मतलब रूटीन में इट विल हैपन. इनिशियली आई विल बी टेकिंग प्लान्स just to get you understand how to derive calories of like how to derive specific calories. Maybe it is 1500, 2000, but later on you have to be more specific on the choices of your recipes. Okay, yes. So initially maybe it will be फुल्का एंड सब्जी एंड सैलड, उस तरीके से ये रहेगा. फिर बाद में these things will be modified. Okay, yes. और कोई queries, मैम Yes? किसी को डायबिटीज है और B12 उसका बढ़ गया है जैसे 2000 तक, तो ऐसे में क्या करना? B12 कैसे बढ़ गया उसका? पता नहीं, मतलब मैम आजकल बढ़ जा रहा है, पता नहीं चल समझ नहीं आ रहा है. 2000 तक आ गया बोले उसका, मतलब वो शादियों वादियों में गई थी ऐसा कुछ बता रहे हो. हाँ. और मतलब उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड करते हैं पर वो नहीं करती, बट बता रहे कि डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गया और B12 भी बढ़ गया. B12 and diabetes. 2000 तक चला गया बोले, बहुत ओवर हो गया. इंजेक्शंस कुछ लिए थे एक्स्ट्रा B12 के? नहीं वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, नॉर्मल जैसे डायबिटीज था और शायद मैरिज में कुछ खाना पीना या जो भी होगा उसका पता नहीं. Okay, I will see the reasons भी why 60 B12 plus है. increase is there. एज भी 63 64 है ऐसा कुछ. Okay, I will see the reasons why B12 is in like क्यों increase होता है and then I will let you know. ठीक है, फूड्स में हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको मैनेज. ओके, विरुद्ध आहार का भी आपने सेशन लिया नहीं? अरे हाँ, वो भी लेना है मुझे. विरुद्ध आहार, यस, आई हैव टू टेक दैट सेशन आल्सो. अभी हम लोग ये कंप्लीट करते हैं थोड़ा रेसिपीज का, प्रोटीन रेसिपी एंड हाई फाइबर रेसिपीज. ठीक है, क्योंकि रेसिपीज का चल रहा है अभी, जो फ्रेश बैच है आपका भी है. ये अभी डाइट प्लान्स अभी हम लोग बनाएंगे तो ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद में हम लोग लेते हैं ये विरुद्ध आहार. ओके, एंड यू नो इनकॉम्पेटिबल फूड्स या इनकॉम्पेटिबल फूड कॉम्बिनेशंस की जब बात करते हैं ना, तो ये चीज हो जाती है कि देयर आर लाइक लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज. ठीक है, किसको कौन कॉम्बिनेशन में क्या देना है, बट आइडियली साइंटिफिकली विच शुड नॉट बी कंबाइंड, दैट आई विल टेल यू. ओके, yes, so we will stop here. Okay, we will meet back again. ये वाला क्वेश्चन जो शिखा मैम ने किया है, हाँ, जो क्वेश्चन शिखा मैम ने किया है, हाँ, क्वेश्चन मैंने भी सेम करना था. मेरे फादर हैं, 66 एज है उनकी, उनको शुगर है, लेकिन उनको पहले तो शुगर बहुत ज्यादा थी, मतलब 450 450 तक आती थी. अब उनकी शुगर तो कंट्रोल में है, 180 175 तक आती है. लेकिन पूरे 1.3 करवाया था, पूरी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका भी B12 बढ़ा हुआ है, 1900 तक पहुंच गया, 19,000 तक, सॉरी 1900 तक. 1900. ओके, ठीक है, आई विल सी द कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन B12. ठीक है, मैं देख के आपको बताती हूँ, बिकॉज देयर वुड बी समथिंग विच इज इंटरनल. ये फूड से रिलेटेड तो डेफिनेटली नहीं है कि जब बढ़ क्यों रहा है. लेकिन हाँ, उनको कोई परेशानी नहीं आ रही, सिर्फ उनका थोड़े खाने पीने से कई बार पेट में थोड़ा सा जैसे
मतलब भारीपन आता है, इससे ज्यादा उनको वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। लेकिन ज्यादा B12 रहना भी गलत है, जी मैम। इट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। तो वो मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में, ठीक है? Yes. So we will stop here. We'll share you the recording, and next time we will complete more protein recipes, and then we will start with the fiber recipe. Okay. So you are getting clear about the recipes, how to plan, how to include foods, क्या combinations में हमें देना चाहिए. Yes. यस Yes. Okay. Yes. Yes. Then चलो. Bye. Bye everyone. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye.